Okay, let's start the class. So, previously we have done, right, the introduction of economy के बारे में we have studied about the scarcity, the basic problems, right? And about the choices also, what kind of choices economic agents make, right? So now we will study about the type of economy. First, we will go like talk about the economic systems, the different economic system that exist in the economy, and after that, now in your syllabus, we'll now this is the part of your syllabus. This is a cutout from your material only. Then we will do the theory of demand and supply. Okay, the determinants, the law of demand and law of supply. This all was part of your microeconomics only that you have studied in class 11th and 12th. Okay. Then the expansion and contraction, the about the elasticity of demand also we will do, and theory of consumer behavior, MU analysis and ICU. So almost everything is like your class 11th and 12th, a little bit of more information. Okay. Now, there are three types of economy, economic systems कह सकते हैं, through which we solve our economic problems. Okay. Now, there are three systems. First is the capitalism, the second is socialism, and third is the mixed economy, right? So, in the capitalist economy, the means of production, or you can say the factors, the means of production में कौन-कौन से factors होते हैं that you have studied, if you can recall? हाँ, land, labor, capital, entrepreneur. So these factors are they're owned by the capitalist, or you can say the private owners. Okay, so it's a private property. In the second phase, socialistic economy, the means of production is controlled by the government. Okay, and the mixed economy, it is both the government and the public. So a lot of big, if there's a lot of big land, or you can say to make, okay, let's say सारी लैंड तो प्राइवेट प्रॉपर्टी की नहीं कर सकते ना. फॉर एग्जाम्पल इफ द कंट्री इज बैकवर्ड, right? So government has to invest to develop the infrastructure, because privates, they are not keen to develop the infrastructure, because first of all the gestation period is very long. मतलब प्रॉफिट को अर्न करने में ही 20-30 years का गैप हो जाता है, राइट? एंड प्राइवेट पीपल कैन नॉट वेट लाइक दैट. Second of all, a big capital investment is required. So whenever a big capital investment is required or the gestation period is long now, so private sector वहाँ पे hesitate to step in. तो वहाँ पे government step in. Okay, and that's why in India the best system as such, तो best कह नहीं सकते हैं कि कौन सा system है, because it actually depends on the requirement of the economy, कि आपकी economy कितनी developed है, क्या problems हैं, और किस टाइप की लेबर एंड कैपिटल एग्जिस्ट करती है, राइट? सो इंडिया में वी एक्चुअली अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट? बिकॉज अभी भी हम क्या डेवलपिंग स्टेज पर ही हैं, वी आर नॉट डेवलप्ड. ओके, सो प्राइवेट सेक्टर यू मोस्टली यू विल सी इन द यूएसए. ओके, एंड गवर्नमेंट में एग्जाम्पल है यूएसएसआर या नाउ रशिया. बेसिकली जहाँ पे पॉलिटिकल कंट्रोल ज्यादा एजर्ट करने की कोशिश करता है ना, जब गवर्नमेंट हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है अपने हिसाब से, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, तो वहां पे यू विल सी कि जैसे यूएसएसआर में, इवन चाइना में भी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यू हैव स्टडीड, राइट? चाइना में भी द सोशलिस्ट इकोनॉमी इज देयर. So, but this concept actually came Russia, USSR, the 5-year planning that you have studied na, in your Indian economy, ये रशिया का concept है. Okay. तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन जिस तरीके से फ्रेम होंगे, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू फोकस ऑन. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, एक तो व्हाट इज द कैपिटलिज्म, द बेसिक यू शुड नो, द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ये बेसिकली टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी ना, कि किन किन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है. उसके बाद वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. Profit maximization, there is a lot of characteristics. I have included these characteristics.
बेसिकली फ्रीडम ऑफ चॉइस का ही पार्ट है वो, जैसे कि आप फ्री, अभी मैं समझाऊंगी आपको पता चलेगा, ठीक है, बट हाँ आप अलग से पॉइंट भी लिख सकते हैं. आई शुड हैव इंक्लूडेड ऑल द पॉइंट्स इन दिस, बट मैंने वो मेन मेन पॉइंट्स इसमें डाल दिए, ठीक है. Because profit maximization is a part of decision making, and that can comes under self interest. All right, जैसे कि consumers, their self interest is to increase the consumer satisfaction, right? And the producer's self interest is to maximize the profit, even minimize the cost. जरूरी नहीं दो, एक maximization profit ही नहीं है, even minimization of cost. Okay. Now, then we'll study the advantages and disadvantages. And then uske baad we will also talk about how the economic problems are solved. So that you will give me the analysis जब आप ये थोड़ा पढ़ लोगे, ठीक है? Okay. तो सबसे पहले तो let's talk about यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो individuals and private parties हैं, they control, ये important है word, एक तो है control द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एमओपी, मतलब जो डिफाइनिंग डिस्क्रिमिनेट जिससे बोलते हैं ना कि जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि तीनों सिस्टम को अलग क्या चीज करती है, तो सबसे बेसिक या मेन पॉइंट है दैट इज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल एंड ओनरशिप. ऑलराइट. एंड द प्रॉफिट्स आर द की ड्राइवर्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी. So the defining characteristics is like competition. There is a lot of competition. Everything is all the decisions are made on the competition itself. कोई एग्जांपल दे सकते हो प्राइवेट उसमें कंपटीशन का, कोई ऐसे इकोनॉमिक एग्जांपल? ओके, थम्स अप एंड पेप्सी. अच्छा, ऐसा तो यू आर टॉकिंग अबाउट द गुड्स. एनी काइंड ऑफ, कैन यू गिव मी सम, जैसे कि ऐसा बिहेवियर शोकेस किया हो बिजनेस यूनिट्स ने, दैट दे आर शोइंग दिस इज अ फियर, जिसको आप बोल सको दैट इट्स अ फियर्स कंपटीशन इन द इकोनॉमी. कोई ऐसी छोटी सी केस स्टडी या कुछ भी इन योर माइंड? Okay, so this is also behavior of what, driving out the people, driving out the competitors from the market. Can you give me one example? I'm asking you about what kind of policy or a behavior in which you can say that they are fiercely competing in the market. आजकल वो नथिंग फोन करके आया है, वो भी एक स्टेटस दिखाता है क्योंकि उनकी प्राइस आईफोन से मैच करती है. So can you tell me how iPhone was able to capture the market? What they have done? What kind of decisions they have taken that they have captured the डिफरेंट मार्केट में बहुत छोटी लोगों, मतलब रिच पीपल को ज्यादा टारगेट किया था उन्होंने स्टेटस की वजह से. और which people? मतलब जो हायर क्लास के लोग हैं, Higher classes. Okay. फिर उसके बाद उनका ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिफरेंट है. एंड्रॉइड, बाकी सिस्टम एंड्रॉइड यूज करते हैं, वो अलग आईओएस यूज करते हैं. So okay. First of all, so they are actually selling their phone expensive. Still, people are buying it because it's a status. They have kind of made it as a status symbol. Can you tell me कि वो status symbol कैसे बनाया उन्होंने उस चीज को? कोई ऐसी observation? Anything? बहुत किया होगा ऑब्जर्व. अच्छा, हैव यू सीन कि मूवीज में एप्पल आईफोन्स ही क्यों दिखाते हैं? आई मीन ऑल द मूवीज मोस्टली एप्पल के लैपटॉप्स, एप्पल के फोन्स. नोटिस किया मैं, है ना, कई मूवीज एंड सीरियल्स में मोस्टली आईफोन का ही ट्यून बजता है एंड एवरीथिंग. हाँ, तो दैट वाज आल्सो अ वे ऑफ डोमिनेटिंग द मार्केट ना, एक तरीके से दे आर एडवर्टाइजिंग, hidden advertisement. They're not telling to buy the iPhone, but your mind has associated the actors and actresses in the movies, they are using this phone and generally they are using this. So kahin na kahin ek mind mein ek association बैठ गई, and no doubt about it, they have maintained the quality. So that's why also the people buy it, right? But अगर कोई status symbol की वजह से, even if it's an expensive, इस चीज को हम किस टाइप की consumption कहते हैं? Any you must have studied in your 11th. एक टर्म यूज होता है इसके लिए.
inferior goods? नहीं, necessities और inferiors अलग होते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी उस पे, we will discuss that. C से शुरू होता है वो word. Okay, let me tell you. Conspicuous consumption बोलते हैं. Okay, conspicuous. Conspicuous का मतलब है show off. You actually buy the goods to show off, and it doesn't follow the law of demand. Generally, when price rises, the demand rises because उसकी prestige value ही उस prices में है. That you are buying an expensive thing. जैसे कि Adidas बोलते हैं, right? Adidas हो गया, और जो भी है Nike, मतलब shoes. Okay. Anyhow, so there are many ways to compete in the market. Private property ownership का क्या मतलब है? Simply इसमें बोलो. Yes. में जो रोड की कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो गवर्नमेंट देती है, मतलब प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट देती है, उसको प्राइवेट नहीं, वो प्राइवेट कंपनी होता है. Simply, you will just write that the means of production are owned and controlled by the private. मुझे रोड वाले तो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं टेंडर्स वाला. टेंडर्स वाला कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं. प्राइवेट कंपनी टेंडर्स देती है रोड बनाने के लिए या फिर रेलवे का जो इंजन को बनाने के लिए. कहीं ना कहीं अगर वो टेंडर्स ले रही है प्राइवेट, आई डोंट थिंक सो इट्स ओनिंग इट, बिकॉज एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है ना वो, तो टेंडर लेके एंड देन इट विल बी आउट प्रॉफिट कमा के. वो तो एक तरीके से गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, राइट? तो वो तो गवर्नमेंट ही ओन कर रही है. बट इट्स बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट का पार्टनरशिप के साथ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं उसको, राइट? दैट कम्स अंडर मिक्स्ड इकोनॉमी. देखो, जब हम एक्चुअल रियलिटी में इन 3 सिस्टम्स, ये तो हम एक्सट्रीम पढ़ रहे हैं, कोई भी कंट्री एक्सट्रीम सिस्टम फॉलो नहीं करती. एवरीवेयर यू विल फाइंड अ लिटिल बिट ऑफ मिक्स. इट्स जस्ट दैट डोमिनेंट, जब आप डिसीजन मेकिंग करते हो ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस, तो इस कौन सा सिस्टम डोमिनेटिंगली इन्फ्लुएंस करता है उन डिसीजंस को, तो हम उसको डिफाइन कर देते हैं कि ओके दिस इज कैपिटलिस्ट, दे आर सोशलिस्ट. ओके, बट एक्सट्रीमली उसी चीज के लिए वही फॉलो करना डजंट हैपन इन ऑल द कंट्रीज. ओके, सेल्फ इंटरेस्ट, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. सेल्फ इंटरेस्ट, यू कैन से, यू कैन राइट हियर अबाउट द डिसीजन मेकिंग. आई विल प्रोवाइड द नोट्स 2 लाइन्स वाला, वो डोंट वरी, अभी समझने पे ध्यान दो. फ्रीडम ऑफ चॉइस, क्या प्रोड्यूस करना है और किसमें ज़्यादा कंपटीशन कम है और स्कोप ज़्यादा है. you have that freedom. You're not obligated to produce a particular good only. जैसे गवर्नमेंट डिक्टेट करती है, मान लो मैं आपको बोलूँ कि आपने कार्स मत, आप फार्मास्यूटिकल कंपनी खोलो और आप मेडिसिन बनाओ, ठीक है, डोंट. एंड मान लो आपको दिखाई दे रहा है कि पीपल आर एक्चुअली बाइंग कार्स, दे आर, मतलब डिमांड इज वेरी हाई बिकॉज इट इज न्यू टू द मार्केट एंड आई विल बी एबल टू मेक मोर प्रॉफिट्स. बट एज अ गवर्नमेंट आई एम टेलिंग यू, नो यू कांट. So that happens in which system? Okay. हाँ, can it happen in the mixed economy? हाँ, very good example. Cigarettes, right? So I can't totally control in the mixed economy, but still I can regulate कहीं ना कहीं, ठीक है? तो but here you have a freedom of choice. The government cannot dictate the consumers what to buy, what not to buy, और ban लगा दो या कुछ ऐसा कर दो. Second of all, the government, assume yourself, ठीक है? The government, for example, cannot say to the producers that you cannot buy this, मतलब you cannot produce this, right? बाकी even market regulations, इन द सेंस जैसे कि अगर मुझे कोई लैंड पे कोई फैक्ट्री खोलनी है किसी भी एरिया में, देन ऑल्सो द गवर्नमेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टिंग मी. हमारे टाइम पे तो रिमेंबर बिफोर द एलईपी लिबरलाइजेशन, दैट एलईपी की कौन सी पॉलिसी थी? एलपीजी, सॉरी, यस, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. बिफोर दैट द गवर्नमेंट यूज्ड टू कंट्रोल विद पॉलिसीज. कोई पॉलिसी का नाम बता सकते हो? कौन सी? इनवर्ड लुकिंग, दे आर प्रोटेक्टिंग द इन्फेंट इंडस्ट्रीज, राइट? कि हमें अपनी इंडस्ट्रीज ग्रो करनी है, ठीक है. बट कहीं ना कहीं कैन यू गिव मी एन एग्जांपल जहाँ पे आपकी मैं फ्रीडम ऑफ चॉइस को रिस्ट्रिक्ट कर दूं, या फिर एक मतलब
एनी एग्जाम्पल डायरेक्ट? से अगर इंडिया में मिक्स इकोनॉमी में देखेंगे तो वो डिफरेंस होता है कि वो प्राइवेट सेक्टर नहीं बनाता, डिफरेंस के आइटम्स और वो ओके सिगरेट्स पे के हैं कि उसको लिमिट किया गया है सिगरेट। okay, this is also one of the things, but we've already discussed this, right, regarding the goods. जैसे कि license raj policy, have you heard about, right? So license में you have to take the license, then only you can open. Even if you want to expand your production, you again have to take the license. This is also in a way restricting the freedom of your choice or your decision. तो इस टाइप का एग्जाम्पल यू कैन गिव, राइट? थोड़ा सा while explaining in your exam, इसके नीचे if you little bit correlate with the economic का example ना, it makes a good impact. Okay. Markets dictate pricing, इसका क्या मतलब है? Markets dictate pricing का मतलब ये है कि the choices that happens in the market, the driving force behind it is prices. First of all, it's a free market economy. Have you heard about laissez-faire? Laissez-faire terminology. थोड़े से वर्ड्स अपनी नोटबुक में लिख लो, वैसे तो आई प्रोवाइड यू विद, बट जो जो हमने थोड़ा डिस्कस किया ना, पॉन्डर ऑन इट. कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन भी लिखना है एक पॉइंट, एंड laissez-faire also. L CONSPICUOUS. And write down point laissez-faire also. नीचे ही लिखो इस पे वर्ड laissez-faire. लिख लिया? ठीक है. वो जो नोट्स हैं वो तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी. अभी फिलहाल जो क्लास में थोड़ा डिस्कशन हुआ है ना, मेक अ हैबिट ऑफ मेकिंग पॉइंट्स में नोट्स, चाहे एक वर्ड या दो वर्ड, ऐसे ब्लैंक ना हो, ताकि व्हेन यू स्टार्ट रिकॉलिंग कि पढ़ाया क्या था, हुआ क्या था, सो दैट यू जस्ट अ बिट कैन रिकॉल. ओके. laissez-faire का actually terminology is given by Adam Smith. You know ना, father of economics is Adam Smith, right? So he said that the government intervention should not be there in the market. ठीक है. He was basically talking about कि capitalist economy होनी चाहिए और free market forces, freely the demand and supply की जो forces हैं, एक दूसरे को आप interact करने दो, and then they will determine the how much quantity should be produced and how much price should be produced. मार्केट डिक्टेटिंग प्राइस का मतलब ये है, लेट मी जस्ट शो यू. जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ा था ना, दिस इज हाउ द डिमांड इज शोन, राइट, द कर्व, एंड दिस इज सप्लाई. ऑलराइट, दिस इज हियर जीरो, दिस इज क्वांटिटी. क्वांटिटी इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट. प्राइजेस इज इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? सप्लाई और डिमांड पे मतलब उससे फर्क पड़ेगा कि क्वांटिटी. ओके, यू वांट टू से समथिंग? ओके, अच्छा मैं एक बार यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ. डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? एक तो ऑलवेज रिमेंबर, डिपेंडेंट जो वेरिएबल्स हैं हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है. इंडिपेंडेंट हम वाई एक्सिस पे लेते हैं. ओके. जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं, on which lecture was I? देखा ही नहीं. जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं हम ऐसे लिखते हैं ना, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स. दिस इज अ बेसिक इक्वेशन मैथ्स में, राइट? तो y डिपेंडेंट ऑन x, x की क्वांटिटी डिसाइड होगी, मतलब x अगर 10 होगा तो प्राइस, तो y जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है.
तो एक तरीके से y इज डिपेंडेंट ऑन x, y इज नॉट चेंजिंग, y इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ x, x इज चेंजिंग तो y चेंज हो रहा है, मतलब y इम्पैक्ट होता है x से, ठीक है। तो सिमिलरली जो क्वांटिटी है वो चेंज होती है, ऊपर नीचे होती है, और उसके हिसाब से प्राइसेस भी चेंज होते हैं। अब ये दोनों एक साथ कैसे होते हैं डिटरमिन, सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस काम कर रही होती है, मतलब डिमांड का जो कर्व है वो किससे बनता है, कंज्यूमर्स के प्रेफरेंसेस से, ठीक है, कि कितने प्राइस पे ही इज विलिंग टू बाय दैट गुड, तो उससे डिमांड कर्व बन गया। सिमिलरली सप्लाई कर्व कैसे बनता है कि हाँ, on which prices the supplier is wanted to supply the goods, right? तो जैसे वो दोनों का बार्गेनिंग पावर सेट होता है, मतलब बार्गेनिंग पावर्स होती है दोनों के पास, वो सेट होता है, आपस में इंटरैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे डिटरमेंट होता है। यहाँ गवर्नमेंट का कोई रोल प्ले नहीं होता, और यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि अरे ये तो नेसेसिटी गुड है, इसके प्राइसेस क्यों आए हैं, यू कांट से दैट। अगर सप्लायर्स कम है मार्केट में और डिमांड बहुत ज्यादा है, तो भी नेसेसिटीज के गुड्स बहुत ज्यादा प्राइस हाई हो सकते हैं, तो ये एक ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना। तो ये सब डिपेंड करता है डिमांड का और सप्लाई का। बहुत लग्जूरियस गुड्स है, अगर डिमांड बहुत कम है, सप्लायर्स बहुत ज्यादा है, जैसे एसी है, अभी तो कितने का आता है एसी, ऑलमोस्ट 40,000। अगर बहुत सारे सप्लायर्स मार्केट में सडनली आ जाएं और डिमांड उतनी ही है, तो प्राइस कम, डजंट मैटर इफ इट्स लग्जूरियस और नॉट, ठीक है। तो एक वो चीज हो जाती है। कैपिटलिज्म का क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ये अब इजीली समझ आ जाएगा, बिकॉज ये एक्सप्लेन करते हुए ही मैंने बहुत सारी चीजें आप पहले बता दी। एडवांटेजेस तो ये कि ऑटोमेटिक वर्किंग है, इट डजंट टेक टाइम। अगर मेरे को बार बार गवर्नमेंट रोकती रहे डिसीजन मेकिंग में, तो इट टेक्स टाइम, राइट। हायर एफिशिएंसी एंड इंसेंटिव टू हार्ड वर्क, इसका मतलब कि हायर एफिशिएंसी एंड इंसेंटिव टू हार्ड वर्क, मैं इससे क्या मतलब समझूं इन कैपिटलिज्म। क्योंकि जो गोल है वो ज़्यादा अच्छे से अचीव होगा, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जो प्रॉफिट का हमने दिया है उससे सबको मतलब एक इंसेंटिव एक्स्ट्रा मिल सकता है। ओके, बट ऐसा क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट नहीं है तो मैं हायर एफिशिएंसी, क्या मुझे गवर्नमेंट हायर एफिशिएंसी अचीव नहीं करने देगी अगर मैं सोशलिस्ट फॉलो करती हूँ। थिंक दैट यू हैव अ कंट्री इन योर हैंड्स, ऐसे थोड़े थोड़े इमेजिनरी सिनेरियोज बनाओ। इसमें हमें जैसे लिमिट रहेगी तो गवर्नमेंट से हर चीज़ में टैक्स पे करना रहेगा, वो सब गुड पॉइंट। प्रॉफिट कम हो जाएगा तो इंसेंटिव बचेगा नहीं। हायर एफिशिएंसी का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं ये डिसाइड करूं कि हाउ टू प्रोड्यूस, कि मैं लेबर इंटेंसिव यूज करूं या मैं ज्यादा मशीन्स लगा लूं अपनी फैक्ट्री के अंदर, तो उसमें इट्स लाइक फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ने मशीन्स पे टैरिफ्स लगा रखे हैं, या एक अब क्या बात होती है कई बार, वी आर वेरी मच अबंडेंट इन लेबर बट वी हैव वेरी मच लेस मशीनरीज, तो हमें बाहर से क्या करनी पड़ती है, इम्पोर्ट करानी पड़ती है, तो उस पर गवर्नमेंट ही इतना टैरिफ लगा देती है कभी कभार तो 100% की आई कांट बाय दोज मशीन्स, एंड देन मुझे लेबर से काम चलाना पड़ता है या मुझे कम मशीन्स खरीदनी पड़ती है, तो इट हैम्पर्स माई एफिशिएंसी। ऑलराइट, इंसेंटिव टू हार्ड वर्क क्यों है, बिकॉज आई एम हायरिंग एंड द वेजेस आर एक्चुअली डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्सेस, तो एक तरीके से द लेबर्स हैव द इंसेंटिव, जितना ज्यादा आप हाई स्किल्स डेवलप कर लोगे एंड यू हैव लेस नंबर ऑफ पीपल इन द मार्केट, सो ऑब्वियसली यू विल बी हायर्ड एट अ वेरी हाई प्राइस। मेहनत और काम तो वो भी करते हैं ना लेबर्स, राइट, बट द CEOs or the people who are working in the MNCs are very high position, they get very much high wages, क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत कम लोग रह जाते हैं, सो इट्स अ वेरी गुड एडवांटेज फॉर यू इफ यू कैन डेवलप दोज काइंड ऑफ स्किल्स जो मार्केट में थोड़ा सा न्यू हो या फिर कम लोगों के पास। ओके, हायर, ओके, यू कैन, आप पढ़ सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या है, हाँ, इसका क्या मतलब है, कैपिटल फॉर्मेशन।
हैव यू हर्ड अबाउट टू टाइप्स ऑफ गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स? याद आ रहा है कुछ? माइक्रो इकोनॉमिक्स में यू हैव स्टडीड ना कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड होते जो प्रोड्यूसर यूज करता है फिनिश गुड बनाने के लिए। यस, वेरी गुड। तो उसमें मशीन्स आ जाती हैं, राइट? और क्या आ जाता है? और बिल्डिंग आती है। बिल्डिंग आ जाती है, और ये गुड्स डेप्रिशिएट भी करते हैं, राइट, ओवर टाइम। तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब यही है कि मैं जितने ज्यादा कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कर सकूं, एंड देन इकोनॉमी में जितने ज्यादा कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस होंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ गुड्स पीपल कैन प्रोड्यूस, राइट? ओके। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी, ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा फ्री छोड़ दो तो मे बी इकोनॉमी कैन डेवलप मोर। कई बारी ना करो चीजें तो वो भी बेटर है आजकल नेगेटिव करने से। तो कई बारी नेगेटिव चीजें ही मतलब भारी पड़ जाती है ना। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वैसे ऐसा एक कुछ बता सकते हो ऐसे ही हम, जस्ट मेंटल ब्रेन एक्सरसाइज, कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया हो जो इकोनॉमी पे नेगेटिव पड़ गया हो? एनी, जो भी माइंड में आ रहा हो। डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो वो 1-2 साल के लिए बोला था, क्योंकि जो पैसे सबके पास थे, जो सेविंग्स वो फिर उनकी रहनी है, क्योंकि उनको बार बार एक्सचेंज करना पड़ा। तो डिमोनेटाइजेशन से वैसे कुछ फायदा हुआ? What do you think? जो ब्लैक मनी था उसको क्या? सॉरी, थोड़ा सा लेट। हम्म। इस पे कभी डिबेट करेंगे, बहुत लंबा टॉपिक है। जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ेंगे ना तब देखते हैं। ओके, डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी, actually it's a kind of a little bit weak point, वैसे तो it can be a point, economic development and prosperity, but कभी कभार obviously if फ्रीली मार्केट में अगर बहुत ज्यादा प्राइसेस फ्लक्चुएशंस हो, ठीक है, इट बिकम्स एक तरीके से रोड ब्लॉक टू डेवलपमेंट, या इन्फ्लेशन सडनली हाई हो जाए, बिकॉज प्राइस तो कोई कंट्रोल कर नहीं रहा, तो फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इनइक्वालिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है मेनी ऑफ द टाइम्स, राइट? तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, yes, resources are optimally utilized because according to जो डिमांड हो रही है उतनी सप्लाई हो रही है, अकॉर्डिंग टू ऑल दैट, या सप्लाई जितनी हो रही है उतनी डिमांड हो रही है, तो उस हिसाब से यूटिलाइजेशन इज ऑप्टिमम, ठीक है, जो एफिशिएंटली हो रहा है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है यहाँ पे इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? जो, वैसे मैंने यहाँ वर्ड डेमोक्रेटिक क्यों लिखा है, बिकॉज इट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोशलिज्म, आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिटलिज्म ओनली। फिर भी जो मार्केट में लीडर होगा वो भी कंज्यूमर चूज करता है, तो उस हिसाब से democratic हो गया। डेमोक्रेटिक बेसिकली इज अ टर्म विच इज डेमोज एंड क्रेटिया। डेमोज का मतलब क्या है? पीपल, ठीक है, क्रेटिया काइंड ऑफ अथॉरिटी। तो people are actually asserting more authority, freely they are choosing, freely they are taking decisions, ठीक है, that's why the word democratic is used over here। Encouragement to enterprise and risk taking, obviously no one, the government is not restricting, you can also use, जनरली थोड़ा बैड भी हो सकता है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि कई बारी यू नो यूएस से जब 1950s और 60s में, मतलब उस टाइम पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रहा था, राइट? एंड एक तरीके से मतलब 1950 और 60 तक आते आते उनका जो पोल्यूशन है वो सबसे ज्यादा वही प्रोड्यूस कर रहे थे, बट देन दे स्टार्टेड बाइंग द कार्बन राइट्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज। सबको कुछ कुछ राइट्स होते हैं हर कंट्री को कि आप इतना कार्बन फुटप्रिंट कर सकते हो, मतलब आप इतना ही कार्बन हम अपनी उसको बचाने के लिए इन्वायरमेंट। बट व्हाट द यूएसए स्टार्टेड डूइंग वाज बाइंग दोस फ्रॉम द अदर कंट्रीज, एंड देन दे वर, द पोल्यूशन वाज मोर इंक्रीज्ड। तो एक तरीके से फिर वही ओजोन होल वाली प्रॉब्लम हो गई थी, राइट? तो 1992 में जब इतने सारे इन्वायरमेंटल, तो प्रॉब्लम ये हो जाती है, इसमें मैं डिसएडवांटेज में बताऊंगी, बट समटाइम्स जो चीज एडवांटेजेस हो सकते हैं उसका दूसरा ही पहलू एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है। रिस्क टेकिंग ऑब्वियसली यू आर अलाउड, बट उसकी वजह से यू कैन ऑल्सो इम्पैक्ट अदर एजेंट्स और अदर इकोनॉमिक एजेंट्स। सो जैसे कि यू हर्ड अबाउट एक्सटर्नैलिटीज, राइट? एक्सटर्नैलिटीज
का सुना है ना? forces. External Forces. forces. And what do you think? एक्सटर्नैलिटीज हाँ कि कुछ करने की वजह से बाकी लोगों को फर्क पड़ जाता है, हाँ, नेगेटिव और पॉजिटिव। हाँ, पनिशमेंट नहीं मिलती। तो कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट पनिश नहीं कर रही है एक तरीके से। अगर मैं पोल्यूशन क्रिएट कर रही हूँ और वो मेरा सी में जा रहा है, मतलब पानी के अंदर जा रहा है, तो फिर दूसरे लोगों को इम्पैक्ट हो रहा है, राइट? फिशेस फॉर एग्जाम्पल, वहाँ की प्रोडक्शन कम हो रही है फिशेस की, तो कहीं ना कहीं जो फिश फार्मर्स हैं या फिर जो लोग हैं, दूसरे लोग हैं, दे आर गेटिंग इम्पैक्टेड। बट स्टिल यहाँ पे कोई जवाबदारी तो है नहीं कैपिटलिज्म में। सो दैट्स this becomes negative also. Encouragement milti hai to enterprise and risk taking, but many of the time, because they are actually the driving force is self interest, they're not thinking about the others, तो इस वजह से it can be negative also. इसीलिए wasteful competition भी है, wasteful competition बेफालतू का, right? Advertisements में इतना खर्चा होता है billboards पे. Human welfare is ignored. No one is thinking about the other person. Economic instability and unemployment. Instability, I've already told you, inflation, price fluctuations. Unemployment can also be generated or created. For example, अगर machines मुझे थोड़ा सा, India is labor abundant, for example, it is labor abundant, but still, अगर मुझे machines थोड़ी सस्ती पड़ रही हैं by importing from the other countries, the government is not putting tariffs, and the other countries are loving to sell their product to you. मेरा मशीन से काम चल रहा है, I'll not buy labor, मतलब मैं नहीं, let's say I'll not hire the people, तो it can also increase unemployment, क्योंकि क्योंकि nothing is getting regulated over here ना, अपने आप हो रही है चीजें। प्रॉपर्टी राइट्स टेक प्रेसिडेंस ओवर ह्यूमन राइट्स। इसका मतलब क्या है कि सेम ह्यूमन वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब चीजों के बारे में ज्यादा कोई सोच नहीं रहा है, प्राइवेट को अपनी प्रॉफिट की ही पड़ी हुई है। देन क्लास कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस, क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी इंक्रीजेस, सोशल इनजस्टिस, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सेम, these two are interrelated. So you can club in misallocation of resources, okay, ये भी यू कैन कोरिलेट, राइट? कहीं पे लेबर ज्यादा हायर हो रहा है, कहीं पे कुछ ज्यादा हायर हो रहा है, मतलब अच्छा, एक आई वांटेड टू नो कि एक क्वेश्चन तुम्हें यहाँ आना चाहिए था कि मैंने ऊपर बताया था, आई थिंक मैंने बताया था ना, एफिशिएंसी नहीं, कहाँ था? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, हाउ कैन इट बी बोथ? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और यहाँ लिखा है मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यूटिलाइजेशन हो गया कि कम रिसोर्सेज में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी। मिसयूटिलाइजेशन मतलब हो गया कि वो जो रिसोर्सेज हमने यूज किए उसको गलत चीज़ में प्रोड्यूस किया, तो वो एक तरीके से वो रिसोर्स को वेस्ट हो गया। राइट, देखो इकोनॉमिक्स में ना टेक्निकल, मैं बताया था ना, इट्स अ पार्ट ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बोथ, राइट? एंड मोस्टली इकोनॉमिक्स इज मोर अबाउट ओपिनियन बेस्ड। ओपिनियन चेंज भी हो जाता है, आप जो कह रहे हो वो भी सही है, मैं जो कह रही हूँ वो भी सही है, इवन इफ वी आर टॉकिंग अपोजिट थिंग्स, क्योंकि आपके खुद अपने कुछ रीजंस हैं जो कि आप बिल्कुल वैलिड बोल रहे हो विद द फैक्ट्स, मेरे अपने रीजंस हैं जो मैं वैलिड बोल रही हूँ विद द फैक्ट्स। इसीलिए पॉलिसी मेकिंग और इसमें बहुत बहुत डिबेट्स होती हैं, ठीक है? तो इसलिए बोथ द पॉइंट्स आर देयर। आई वांट टू स्ट्रेस ऑन दिस कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस भी दिखाई देंगे, कि यहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, वो एक अलग एंगल से कह रहा है कि फ्री मार्केट मैकेनिज्म है तो यूटिलाइज हो रही है रिसोर्सेज, बट यहाँ पे मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, क्योंकि वेस्टफुल वेस्टफुल भी हो सकती है, या फिर डिफेंस गुड्स नहीं बन रहे, कंज्यूमर गुड्स है, लग्जूरियस गुड्स ही बन रहे, नेसेसिटी गुड्स नहीं बन रहे। सो दिस इज मिस एलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेज, ओके। मोनोपोलीज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, दिस तो यू नो ना, जो बिग बिग प्लेयर होगा वो बहुत जल्दी मार्केट डोमिनेट कर लेता है, जैसे जियो, ठीक है? जियो ने ऐसा क्या किया पूरी कुछ तो मोबाइल सेक्टर में उसने किया था। हाँ, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि उन्होंने मार्केट खराब कर दी? अर्लियर यू वर नॉट पेइंग मनी, प्रीपेड के लिए भी यू वर बाइंग एंड द सर्विसेज, बट स्टिल आपका नंबर बंद नहीं होता था, अब आपका नंबर बंद हो जाता है, तो इनडायरेक्टली वी गॉट इम्पैक्टेड।
बिकॉज ये क्योंकि जो दूसरी फर्म्स हैं वो लॉस मेकिंग में चली गई एक तरीके से, तो उन्होंने फिर फियर्सली इस तरीके से ओवर रिएक्ट किया आफ्टरवर्ड्स कि अपने अपना जो पैसा है उसको दोबारा से वो करने के लिए कि हम सरवाइव भी कर पाएंगे अब ये वाला चीज करके। तो कुछ नहीं हुआ वैसे तो, जियो बस मार्केट में घुसने के लिए और करने के लिए ये एक, इसको भी एक नाम बोलते हैं इन योर बिजनेस इकोनॉमिक्स यू विल स्टडी, इट्स कॉल्ड प्रिडेटरी प्राइसिंग। लिख लो एक वर्ड ना, जैसे कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं कैची या फिर टर्मिनोलॉजी, इट्स कॉल्ड प्रिडेटरी प्राइसिंग। प्रीडेटरी प्राइसिंग। प्रेडेटर्स होते हैं ना इन जंगल, राइट, जो खाने आते थे, जैसे शेर होता है, राइट। तो जियो व्हाट डिड दे डू इज, फॉर एग्जांपल अगर हर चीज 50 रुपीज की और वो 10 रुपए की बेचने, सडनली इतने कम प्राइसेस कि मेरे को लॉस भी हो रहा है ना, तो भी आई एम सेलिंग एट दैट। दूसरे तो फर्म्स कर ही नहीं पाएंगे बिकॉज दे डोंट वांट टू बेयर द लॉसेस, बट लॉस करके भी मैं प्राइस इतने कम रख दूं जस्ट टू कैप्चर द मार्केट इज कॉल्ड प्रेडेटरी प्राइस। और ये कई हद तक हमारी इकोनॉमी में गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बट कैपिटलिज्म में ऐसा नहीं है। ठीक है, कैपिटलिज्म तो ऑब्वियसली दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट, तो वो एक चीज हो जाती है। इसलिए यहाँ पे मोनोपोलीज का इमर्जेंस हो जाता है एंड इकोनॉमिक पावर कभी कभार कॉन्सेंट्रेट भी हो जाती है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है इकोनॉमिक पावर की, इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है? अगर इकोनॉमिक पावर क्या है, मोस्टली मनी, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट हो जाना मतलब कम ही लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो दे कैन मेक मोर मनी आउट ऑफ इट। तो बट ज्यादा लोगों के पास कम पैसे है तो इट्स लाइक इनइक्वालिटी इंक्रीजेस, राइट। तो कहीं ना कहीं इट इम्पैक्ट्स द वेलफेयर, ठीक है। तो इस दिस इज हाउ यू कैन कोरिलेट। ओके, यहाँ तक समझ आया? ओके, I'm giving you 2 minutes to think about। वैसे तो मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया that you'll be able to easily answer। मेरे को तीनों के एक बारी वो बता दो मुझे कि how the economic problem is solved, what to produce, how to produce and whom to produce। कैपिटलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में कैसे सॉल्व होती है प्रॉब्लम्स? और फिर प्रोड्यूस में तो जिसमें कंपटीशन कम है और उसमें उसका स्कोप ज़्यादा है और कंज्यूमर सेटिस्फाई हो सकता है। जो नीड है कंज्यूमर की उस हिसाब से वो व्हाट टू प्रोड्यूस करेगा और क्या। फिर हाउ टू प्रोड्यूस में अगर इंडियन इकोनॉमी में देखेंगे तो अगर तो उसमें लेबर अबंडेंट है इंडिया, तो उसमें अगर नेचर ऑफ बिजनेस को प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर वाले हैं, तो वो ज़्यादा मशीनरी की तरफ जाएगा, लेबर से कम हो जाएगा। ओके, और होम टू प्रोड्यूस में कैपिटलिज्म वाला है इकोनॉमी, तो उसमें फिर वो इनइक्वालिटी आ जाती है, वो प्राइसिंग हाई रखते हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना ओके, बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग का डिसीजन लेना तो अच्छी बात है ना, मतलब उसी से इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। है। वो डिपेंड करता है गुड्स क्या है और उसके मार्केट में यूटिलिटी क्या है। अच्छा, ठीक है। what is your answer? Same नहीं, you have to give your answer। How will you write it in the exam? What words should come into your mind to express yourself? What to produce? How will you explain in 2 lines that in capitalist economy the what to produce problem is solved by dash? By? Okay. अच्छा, ओके, ओके। देखो, जो आप आंसर्स दे रहे हो ना इट्स करेक्ट, इट्स नॉट रॉन्ग, पॉइंट्स पे आपने ठीक पकड़े हैं, बट
how you can frame it in a sense, मैं बताती हूँ. What to produce में basically you will write the consumer has freedom. कुछ वर्ड्स है ना जो मैंने आपको पहले बताए थे ऊपर, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स लैंग्वेज को थोड़ा फोकस करने की, मतलब now you are like above class 12 right, अब तो you what you can do is, तो थोड़े से ये कुछ एक तरीके से इसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज ही मान लो, ठीक है. तो जैसे फ्रीडम ऑफ चॉइस ये यहाँ पे दिए ही इसलिए हैं so that you can use these words in explaining your answer. तो जैसे what to produce है, you can say the producers and the consumers they have the freedom of choice to produce either consumer goods or capital goods, ठीक है. तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो what to produce में the market forces will decide which goods to be produced in the capitalism economy, ठीक है. Second, how to produce, the more the cheaper the labor and the capital, according to that the technique is adopted, be it labor intensive technique or capital intensive technique in capitalism economy economic system लिख सकते हैं, ठीक है. whom to produce is like inequality. इनइक्वालिटी का वर्ड यूज कर सकते हो उसमें आप, जैसे कि सिंस द ओनर्स. अब यहाँ पे होम टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे होती है, बाय हायरिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तभी तो वो इनकम मिलेगी ना. तो यहाँ पे आपको जो पॉइंट डालना है वो ये है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सिंस द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, ठीक है, इसीलिए द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज अकॉर्डिंग टू the demand in the market which could create inequality, ठीक है. तो ये समझ आया, ओके. चलो लेट्स टेक 1 minute break, maybe you are a bit, फिर हम सोशलिज्म पे आते हैं. वन मिनट ब्रेक का मतलब था डिस्कशन. ओके, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तुमने चाइना के बारे में पढ़ा था राइट? कुछ याद आ रहा है, कुछ रिकॉल हो रहा है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सोशलिज्म से रिलेटेड? क्या क्या, किसके बारे में? हाँ, वेरी गुड. यस, ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी. क्या थी वो पॉलिसी? कलेक्टिव फार्मिंग. तो फिर वो सक्सेसफुल हुई क्यों? मतलब उसमें काफी सारे पॉइंट्स है कि नहीं भी एक तरफ पावर सारे एक साथ आगे को पावर इससे कुछ लोग यदि लैंड पर बहुत लगे तो फिर चाइना पीछे रह गई बिकॉज अच्छा, एग्रीकल्चर में पीछे रह गया और मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा आगे बढ़ गया. ओके, नहीं बट एग्रीकल्चर में भी इट्स प्रोड्यूसिंग गुड, ऐसा तो कुछ नहीं है. व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन? वेरी गुड, डुअल प्राइसिंग, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. ओके, तो ये तो थोड़ा सा तो एक्सप्लेन करो डुअल प्राइसिंग थी. आई डोंट नो व्हाट इज डुअल प्राइसिंग. नेसेसिटी गुड्स पे नहीं, हर गुड्स पे उन्होंने 2% थे, एक गवर्नमेंट के से था और एक जो प्रोड्यूसर है उनके से था. तो उसमें कोई ऐसा नहीं था कि आपको ये लेना है और फिर बेसिकली लिमिट नहीं थी कि इन्हीं गुड्स पे थे, ऑलमोस्ट सारे गुड्स पे डुअल प्राइसिंग के था. और फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की फॉरेन की कंपनीज जो थी उनके लिए एक जगह बनाई गई थी जहाँ पे सारे कंपनी सेटअप थे और वो मतलब कंट्री साइड में मतलब कंट्री के आउटर साइड में और भी था. अच्छा,
ड्यूअल प्राइसिंग तो जनरली ये था कि जैसे 100% गुड्स है मार्केट में, तो 70% गुड तो रेगुलेटेड है कि आप इतने क्वांटिटी बाय कर सकते हो इतने प्राइस पे, दिस इज आवर, दिस इज रेगुलेशन, ठीक है। बाकी 30% ऑफ द गुड्स मार्केट डिटरमिन प्राइस, दैट इज डुअल प्राइसिंग, ठीक है, कि मैंने कुछ लिमिट कर दी क्वांटिटी, ओके। तो एक तरीके से ये एक मूव था सोशलिज्म में, यू कैन से। बाकी मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देती हूँ बिकॉज आई थिंक इसके बाद ये तो बहुत जनरल जेनरिक टॉपिक है, यू नो दैट राइट। डेमोक्रेटिक कंट्रोल है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल मतलब फ्रीडम इज, नहीं, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ चॉइस। The choices are, this is what this point is trying to say, that your freedom is restricted now, your choices are being restricted। जैसे ये भी तो एक restriction है, अगर मैं आपको फोर्स करूं दैट आप अपनी, आप करते भी नहीं हो इंडस्ट्री, आपको इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन बैकयार्ड में आपको नहीं लगानी है लगानी है लगानी है, मैं भी सर पे खड़ी हो जाऊं तो फिर आपको कैसा लगेगा? यू नॉट इंटरेस्टेड बाय प्रोफेशन, लेट्स से यू आर अ डॉक्टर और अ लॉयर, लेकिन नहीं, आपको छोटा सा प्रोडक्शन यूनिट खोलना है, यूनिट, तो वो चीज, तो डेमोक्रेटिक कंट्रोल वर्ड यूज किया है इसने, ठीक है। सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट इज ओनिंग प्रोडक्शन फॉर यूज नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब वेलफेयर के लिए प्रॉफिट, हाँ वेलफेयर के लिए, नेसेसिटी गुड्स पे ज्यादा, डिफेंस गुड्स पे ज्यादा ध्यान देना, राइट। इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, होता है क्या ऐसा? आती है इक्वालिटी? नहीं आती। और सब्सिडीज देके आ जाती है। शगुन हर इकोनॉमिक सिस्टम को रिजेक्ट मार रही है, कहीं कुछ नहीं हो सकता, मिक्स इकोनॉमी ठीक है। सब्सिडीज देने में हो जाती है थोड़ी दिक्कत, मतलब इतनी तो कम है कि मतलब थोड़ा गैप हो जाता है, हाँ, वैसे सब्सिडीज देना अच्छा है या बुरा है, वो तो लिमिटेड। ये भी डिबेटेबल है। कोई भी टॉपिक ही अच्छा है ना इकोनॉमिक्स में, एवरीथिंग इज लाइक हाँ ठीक है, डिबेटेबल है, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। inequality, you can say equality आती है, you can say that economic equality, why? Because government is now focusing on human welfare, हमारा जो main focus चला जाता है is on human welfare, education, health। वो अलग बात है कि if the government is corrupt, तो obviously nothing is, if your intentions are bad, तो आप कितनी भी अच्छी policies implement कर लो, अगर उसकी implementation, वही वाली बात है ना, आपने पॉलिसी अच्छी बना के दी बट अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही गड़बड़ है, दैट ऑल्सो फेल्स। तो हमारा जो इंटेंशन है तो वो होता तो है इन सोशलिज्म, टू ब्रिंग इक्वालिटी, टू ब्रिंग सोशल जस्टिस, ठीक। मीटिंग सोशल जस्टिस का एक एग्जांपल दे सकते हो इकोनॉमिक के टर्म्स में, इंडस्ट्रीज के टर्म्स में? हाँ, कुछ कुछ एमएनसीज में आपको सीएसआर पे वो मिलता है, छूट मिलती है, जैसे कि 25% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये देना है। कभी कभार टू एनकरेज कि वुमेन एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय करो, तो ऐसा बोल सकते हैं कि आपके एटलीस्ट 30% एम्प्लॉयज जो है वो वुमेन होनी चाहिए, तो दिस इसमें एमजी लगेगा, एमजी नरेगा, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस तो नहीं कह सकते बिकॉज यू आर डूइंग दैट टू अपलिफ्ट पीपल, यू आर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। सोशल जस्टिस में यू कैन गिव एक और एग्जांपल, जैसे कि हाँ, समथिंग जहाँ अलग अलग, सोशल का मतलब क्या है, जहाँ अलग अलग कम्युनिटी एग्जिस्ट करे और आप उस कम्युनिटी को कुछ ऐसा प्रोवाइड करो कि वो थोड़ा सा इक्वल compete कर पाए या फिर इक्वल उस पर, जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, 1955 में देयर इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, राइट, वो जो केबिक का कमीशन आया था, कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रिजर्व करना, मतलब ये वाले जो गुड्स हैं, जैसे कि कुछ गुड्स हैं जो कि स्मॉल स्केल को ही अलाउड है टू प्रोड्यूस, बड़े बड़े बिग बिग कंपनीज उसको नहीं प्रोड्यूस करेंगे, सो दैट दे कैन थ्राइव स्मॉल स्केल, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोशल जस्टिस। मीटिंग पीपल नीड एज अ गोल, मीटिंग पीपल नीड, यही कि पीपल की जो नीड्स हैं उनके हिसाब से आप क्या डिजायर करते हो, आपका क्या सेल्फ इंटरेस्ट है, डजंट मैटर,
जो ओवरऑल नीड है, रिक्वायरमेंट है कंट्री की, वो एक एग्जांपल मैं देती हूँ यहाँ पे सो दैट यू रिमेम्बर, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स तो याद रहेंगे नहीं, सिर्फ बातें याद रहती है, राइट? पॉइंट्स याद नहीं रहते इकोनॉमिक्स में। नीड्स जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक कंट्री में पॉलिटिकल टर्मोइल बहुत ज्यादा है पॉलिटिकली, तो उस टाइम पे नीड क्या बन जाती है, टू प्रोड्यूस एज मच एज डिफेंस गुड्स। तो गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा व्हाट टू प्रोड्यूस में डिफेंस गुड्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, या फिर वहां इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देती है, ठीक है? जहाँ पे पिछड़ा हुआ, फॉर एग्जांपल अगर कोई कंट्री बहुत अंडर डेवलप्ड है तो वहाँ ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं है इतने, तो वहाँ एजुकेशन हेल्थ पे काम करना स्टार्ट कर देती है, तो उस दैट्स फॉर नीड्स एज अ होल। ओके, एक बार ये खुद से पढ़ो, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, एंड देन एक्सप्लेन अ लिटिल बिट। दिखाई दे रही है? एडवांटेज कौन समझाएगा और डिसएडवांटेज कौन समझाएगा? सोच लो, जस्ट अ बिट, स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स। चलो ठीक है, शगुन तुम डिसएडवांटेज। बोरिंग तो नहीं लग रहा? बहुत बेसिक लग रहा है। एक्चुअली स्टार्टिंग के टॉपिक्स थोड़े से बेसिक हैं, बट ये सही भी है, दे आर स्कोरिंग। उसके बाद सब कुछ बहुत टेक्निकली है। किसका? इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है जैसे कि गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, तो उसमें जो हायर लेवल पोजीशंस पे काम कर रहे हैं लोग, मैनेजर्स हो गए, ठीक है, दैट्स ब्यूरोक्रेसी। और यू कैन से पॉलिटिशियंस आल्सो कम अंडर ब्यूरोक्रेसी। लेकिन यहाँ पे पब्लिक सेक्टर ओन्ड एंटरप्राइजेस की अगर मैं बात करती हूँ, तो इन दैट टर्म्स ब्यूरोक्रेसी का मतलब है जो हायर लेवल पे अथॉरिटीज है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब अथॉरिटीज होता है बेसिकली इन ऑल द कॉन्टेक्स्ट। नीचे करना होगा इसको तो बता देना मुझे, स्क्रॉल डाउन। अच्छा, पायलट, ओके। ये तुम्हारे मटेरियल से ही बनाई हुई है, तो ऑल दीज पॉइंट्स यू विल गोना फाइंड इन व्हेन यू गो थ्रू योर मटेरियल ना। ओके, कहाँ से शुरू करूँ? हु इज रेडी टू टेल एडवांटेज और डिसएडवांटेज? ओके, यू टेल। पहला है इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड रिड्यूस इनकम। हम वो सब्सिडीज देके पूरे जो पुअर में गैप ब्रिज कर देते हैं। दूसरा यूनिवर्सल एक्सेस टू बेसिक नीड्स। हम ये पब्लिक जो सर्विसेज होते हैं, पब्लिक गुड्स जैसे पार्क हुए, हॉस्पिटल हुए, पब्लिक गवर्नमेंट स्कूल हुए, तो उसको प्रोवाइड करके उनको मतलब एक स्किल उनको दे देते हैं, स्किल अप कर देते हैं। अच्छा, मैं यहाँ एक क्वेश्चन पूछूं, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, एनी आइडिया अबाउट इट? किसने दिया, क्या था? एक ही इंडियन है जिसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है इकोनॉमिक्स में। कौन है? स्टैटिस्टिक्स में मिला है उसे, इकोनॉमिक्स में नाम भूल गए हो? ए से शुरू होता है। नहीं, अमर्त्य सेन नाम सुनो? Amartya Sen got the Nobel Prize because he gave the definition of welfare economics. और उसने ये बोला कि जो चॉइसेस है ना वो वेलफेयर बेस्ड होनी चाहिए। तो एक तरीके से वो जो कॉन्सेप्ट है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम वालों ने जो अपना एक इंडेक्स निकाला था, जैसे एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है ना, कैलकुलेट होता है कि इंडिया की कितनी रैंक है, तो ये यूएनडीपी करती है, ठीक है?
So that HDI का concept was given by Amartya Sen, and for that he was given the prize, Nobel Prize. हालांकि एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट भी था, महबूब उल हक, और ये सब आपने पढ़ा हुआ है, पता है 12th क्लास के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, अभी तो 12 दिया तुमने। उसमें है तो सही, एजुकेशन ह्यूमन कैपिटल में, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का नहीं है एक चैप्टर, तो यहाँ पे पकड़ लिया तुम्हें। इजी को तो करना चाहिए बिकॉज इट्स स्कोरिंग। और फिर वो निकल गया ऊपर ऊपर से अब। ओके, तो ये यूनिवर्सल एक्सेस टू बेसिक नीड्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग, ही काइंड ऑफ स्ट्रेस ऑन दिस पॉइंट। ओके, नेक्स्ट। इसमें वही है जो पब्लिक पार्क है तो उस पे सबका मतलब राइट है, जबकि आई थिंक रिच का हिट को पार्क कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। कलेक्टिव पार्क का एग्जांपल दोगे इसमें? पार्क तो पब्लिक गुड नहीं हो जाएगा, वो कलेक्टिव ओनरशिप होगी। बट एक तरीके से आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट भी तो हो, आप सीए के, मतलब लाइक यू आर डूइंग सीए नाउ, तो ऐसे तो मत लिखो। कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ की रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज, व्हाट डू यू थिंक शगुन, क्या बोलोगे आप इस पे? प्लीज अपने विचार थोड़े से इस पे रोशनी डालिए। इसमें ये हो सकता है कि जो चीज़ गवर्नमेंट या सोशल प्रोवाइड किया जाए उस पे सबका इक्वल राइट है, वैसे नहीं कोई बहुत ज़्यादा दूर से ज़्यादा राइट, दोनों जो है चाहे कलेक्टिव ओनरशिप का यू कैन गिव एग्जांपल, जैसे लैंड। सोशलिज्म में रशिया ने यही तो किया था। 9th क्लास की हिस्ट्री याद है कुछ? अच्छा, अब तो 9th नहीं याद होगी, कुलक्स के बारे में या कुछ? क्या? ओ, वो तो सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, रशियन रेवोल्यूशन में था ये, जिसमें ये 5 ईयर प्लान्स के बारे में सेकंड लास्ट पेज पे दिया हुआ है, 5 ईयर प्लान्स के बारे में, और उसमें ये बता रखा है कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द लैंड। ये एक पॉलिसी जब सोशलिज्म उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी ना, रशिया ने किया था सबसे पहला एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सोशलिज्म। तो उन्होंने बोला था कि जितने भी फार्मर्स हैं ना, हम लैंड को क्या करते हैं, कलेक्टिव करते हैं। पहले स्मॉल स्मॉल होल्डिंग्स थी, ठीक है, अपने अपने डिसीजन लेके लोग क्रॉप्स उगा रहे थे, बट इट वॉज नॉट एक तरीके से, अगर लैंड को आप कंसोलिडेट कर दो ना, फिर आप ज्यादा मतलब इफिशिएंटली उस चीज को कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक ही क्रॉप हर लैंड पे उगा रहे हो, साथ में आप फर्टिलाइजर्स खरीद रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो दिस व्हाट गवर्नमेंट थॉट, अलग अलग की तरीके से बेटर है कि लैंड को हम बोल देंगे कि हमारी ओनरशिप है, ठीक है। लेकिन मान लो एज अ गवर्नमेंट जाके मैंने आपसे आपकी लैंड लेना स्टार्ट कर दिया, तो यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड, गुस्सा आएगा, यू विल नॉट। तो मैंने आपको एक तरीके से थोड़ा सा बुद्धू ही बना दिया कि लैंड आपकी ले ली, बट आपको ये बोला कि यू हैव अ कलेक्टिव ओनरशिप, यू आर फ्री कि आप इतना उगा सकते हो, इतना ये कर सकते हो, और फिर आप साथ में डिवाइड करोगे। अगर 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन हुआ है और 5 लोगों ने करा है, तो आपने उसमें कितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बट दैट विल बी डिवाइडेड इक्वली, ठीक है। यहाँ पे सोशलिज्म फेल हो जाता है। अगर एक्सट्रीम लेवल पे, सोशलिज्म का जो एक्सट्रीम लेवल होता है ना, उसे कम्युनिज्म बोलते हैं, और ये कार्ल मार्क्स ने दिया, आपके उसमें भी लिखा है बुक में कि सोशलिज्म, आई हैव नॉट इंक्लूडेड एवरीथिंग इन द पीपीटी, बट मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रही हूँ जो आपके सिलेबस का ही है। सबसे पहले तो कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स, दीज आर 2 पीपल। अगर इकोनॉमिस्ट के नाम थोड़े से आपको है तो एडम स्मिथ इज कैपिटलिज्म का नेम, ठीक है, कैपिटलिज्म से रिलेटेड इज एडम स्मिथ, एंड अगर सोशलिज्म है तो इट्स कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, और 1 लाइनर। तो नो डाउट एवरीवन इज गेटिंग, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है, एक तरीके से इंसेंटिव तो नहीं है ना, राइट। अगर मैं क्लास में बोलूँ आप पढ़ाई करके आओ, और जो भी मार्क्स आएंगे टोटल वो सबको उतने उतने ही मिलेंगे। तो जो कम पढ़ के आया, जो ज्यादा पढ़ के आया है, जो कम आया है पढ़ के, वो तो खुश हो जाएगा,
तो भी उसको वो उतना ही मार्क्स मिल रहा है। जो ज्यादा पढ़ के आया है वो तो दुखी हो जाएंगे ना, वो तो पीपल इससे इनएफिशिएंट हो जाएंगे ना थोड़े से। ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। ओके, सोशल वेलफेयर एंड मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो एडवांटेज में क्यों लिखा हुआ है कि वी आर गिविंग चांस टू एवरीवन, इवन द लैंडलेस लेबरर इज नाउ द कलेक्टिव ओनर। Actually, he is not an owner, collective owner. Okay. Next point. सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी, हम एक सेम पॉइंट है कि इनइक्वालिटी को हम कम करते हैं और गैप ब्रिज करते हैं, जिससे उसका पुअर का स्टेटस थोड़ा अपग्रेड होता है। Okay. ठीक है। Reduction. रिडक्शन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड लैब और इनइक्वालिटी सेम पॉइंट। Actually, लेबर था। Exploitation of labor होना चाहिए। Sorry, my bad. मैं इसको ठीक कर लूंगी। Reduction of exploitation of labor और inequality। मतलब एक्चुअली और नहीं होगा, रिडक्शन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर एंड इनइक्वालिटी है। ठीक है, आई मेक इट दिस। तो ये पॉइंट एक तरीके से रिपीट ही हो रखा है, बट ये एक न्यू है, रिडक्शन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर। हाउ कम? क्योंकि इसमें इंसेंटिव मिलेगा नहीं, तो एक तरीके से लेबर को इंसेंटिव नहीं मिल रहा और सोशल वेलफेयर हो रहा है, तो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। देखो, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सोशलिज्म ना, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, प्राइवेट कंपनीज भी एग्जिस्ट कर रही हैं, बट वो अलग बात है कि जो रेगुलेशंस हैं वो या चॉइसेस हैं वो गवर्नमेंट डिसीजन मेक कर रही है। तो कई बार क्या होता है, इन कैपिटलिज्म द लेबरर्स वर हायर्ड अकॉर्डिंग टू, ठीक है, वेज रेट वट एवर, अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिस्टम। लेकिन लेट्स से कि लेबरर्स को बोलते नहीं है कि बेसिक टू सरवाइव इनकम उतना भी नहीं अगर मिल रहा है, ठीक है, तो वो हो सकता है इन द केस ऑफ कैपिटलिज्म। अगर बहुत सारे लेबर्स आ जाएं, बहुत सारे लेबर्स हो जाएं और कैपिटल मोनोपोली हो जाए, कैपिटल और बहुत सारे लेबर्स, ठीक है, एक फॉर्म की मोनोपोली है, तो वो इतने मिनिमम सर्वाइवल, इतना वेज कम रखे कि लोग सर्वाइव भी ना कर पाए, जो कि हुआ था व्हेन द न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन केम, जब नया नया आया था ना, तो बहुत सारे लोग घेटोस ऐसे बनने लग गए थे। बहुत सारे लोग 17 आवर्स तक काम करते थे, तो दे वर काइंड ऑफ गेटिंग एक्सप्लॉइटेड। बट इस वाले केस में गवर्नमेंट डिसाइड कर सकते हैं कि मिनिमम वेज इतना देना ही देना है, तो इसलिए एक्सप्लॉइटेशन इज लेस। ओके, देन सोशल गुड्स ओवर प्राइवेट गुड्स, emphasis on social goods over private profit। ठीक है, मतलब प्राइस को हाई सेट करने से बेटर है कि जो नेसेसिटी आइटम्स हैं उससे प्राइस कम करके सोशल ठीक है। डेमोक्रेटिक, ये भी सेम हो गया, ये तो पता है, पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक डिसीजंस। ठीक है, ओके, नाउ टेल मी अबाउट द डिसएडवांटेजेस। ओके, और दूसरा इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी इसमें ज़्यादा गवर्नमेंट के पास तो जितना भी काम होगा उसको स्पीड से होगा और लोग आना चाहेंगे चाहे तो अच्छा, किस में बता रहे हो आप ये? Which point you're explaining? Shortage of goods and services? Yeah, limited individual. You didn't mention now which. Economic inefficiency and bureaucracy का ही example दे रहा हूँ. Okay. इसमें आप करप्शन वर्ड यूज कर सकते हो, ब्यूरोक्रेसी से यू कैन सजेस्ट करप्शन इज देयर। एक एग्जांपल दे सकते हो इसमें, शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इकोनॉमिक, जहाँ पे गवर्नमेंट
डिसीजन ले रही हो, वैसे गवर्नमेंट डिसीजन ले रही हो तो शॉर्टेज कैसे हो सकती है? गवर्नमेंट तो अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द पीपल ही तो कर रही है प्रोवाइड। हाँ, तो ये क्यों है शॉर्टेज ऑफ गुड्स? ओके, बट कुछ सिचुएशंस में ना, जैसे कि वॉर टाइम सिचुएशंस है, उसमें थोड़ी सी गवर्नमेंट का जो है फोकस चेंज हो जाता है। तो कई बारी इवन हंगर भी इंक्रीज हो सकता है, पॉवर्टी भी इंक्रीज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे रिसोर्सेज अब गवर्नमेंट जो है वो डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है। तो उस वजह से अब यहाँ पे सोशलिज्म है, गवर्नमेंट ही डिसाइड कर रही है सब कुछ, स्टिल देयर इज शॉर्टेज ऑफ गुड्स। व्हाई? बिकॉज नेसेसिटी गुड्स में भी शॉर्टेज, क्योंकि अब प्रायोरिटी क्या हो गई? डिफेंस है। तो ये एग्जाम्पल दे सकते हो, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लिमिटेड इंडिविजुअल फ्रीडम एंड चॉइस। हाँ, ये है थोड़ा सा ना, ये सब सेम सेम लगते हैं, लेकिन थोड़ा एग्जाम्पल देके इफ यू एक्सप्लेन देन। Okay. This is actually the topic is part of Indian economic development, जो just इसी के नीचे according to your material has been included. ये लग तो रहा है जैसे, बट पता है क्या है इसमें ना, थोड़ा व्हेन यू विल एक्सप्लेन इट इन द एग्जाम ना, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि आप ऑलरेडी आईडी तो पढ़ ही चुके हो ना थोड़ा सा, यू कैन यूज दैट नॉलेज ऑफ क्लास 12 बाय एक्सप्लेनिंग दीज पॉइंट्स। ये इतना डेप्थ में नहीं था, आई अंडरस्टैंड, इन योर क्लास 12। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम बस वो सेकंड चैप्टर में थोड़ा बहुत बता दिया था, जो पीसी महाल याद आ रहा है कुछ, सेकंड वाले चैप्टर में जब हम बस एंटर ही करते हैं आफ्टर द एग्रीकल्चर सेकंड चैप्टर में, तो उसमें अब इसमें क्या है, यू कैन कोरिलेट ऑल द चैप्टर्स कहीं ना कहीं टू दिस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कौन सा वाला टॉपिक पॉइंट था, लिमिटेड इंडिविजुअल फ्रीडम एंड चॉइस हमने कर लिया था ना, या वही कर रहे थे? यही वाला ना, लिमिटेड इंडिविजुअल फ्रीडम एंड चॉइस। तो इसमें एक एग्जाम्पल तुम दे सकते हो उसमें से, बुक में से, कि गवर्नमेंट अगर जेंडर्स नेगेटिव भी दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जेंडर रिलेटेड कुछ ऐसी पॉलिसीज क्रिएट कर लें, या जैसे कि आप वन चाइल्ड पॉलिसी का भी दे सकते हो। ठीक है, तो अब चाइना क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यूथ कम हो गई है। हाँ, अब फिर से दे हैव चेंज्ड। तो वो वाली चीज अब इसको एक्सप्लेन करने में, इंस्टेड ऑफ जस्ट एक्सप्लेनिंग द पॉइंट इन इंग्लिश का मीनिंग बता देना, यू कैन एक्चुअली, इट्स वेरी अट्रैक्टिव अगर आप एक दे देते हो तो ऐसे, जो कि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस ये कि थोड़ा सा रिकॉल करने की जरूरत है। ओके, डिपेंडेंस ऑन सेंट्रलाइज प्लानिंग, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? चाहे वो कोई टेक्निकल प्रोडक्शन हो, जो वो प्लान करता है वो उस हिसाब से करना पड़ता है। एंड प्लानिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अच्छी बात है कि आप प्लान करके कर रहे हो, बट मेनी टाइम्स यस इट गेट्स डिलेड। ओके, लैक ऑफ कंपटीशन। ओके, कई बार ये अपने आप को वो इंटरनेशनल ट्रेड में जो कंपटीशन है उससे प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करेगी, तो मेनी ऑफ द टाइम्स इट विल स्टार्ट प्रोटेक्टिंग द इन्फेंट इंडस्ट्रीज, राइट? लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, रिस्क ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। थोड़ा सा तेज बोलोगे बस, पंखे की आवाज में। वो गवर्नमेंट के पास ही रह जाएगा, चांस से मिलेगा आपको, जो भी पेड़ के काम होगा वो सब गवर्नमेंट का ओके, many of the times you can say कि see self interest तो होता ही होता है, even if the intention behind is the welfare of the people, but many of the times when the government becomes authoritative, जैसे कि जर्मनी में हिटलर के टाइम पे था, तो many of the times गवर्नमेंट में फिर वो करप्शन इंक्रीज हो जाता है,
कैन लूज दैट, करप्शन इंक्रीज हो जाता है, इनएफिशिएंट बन जाते हैं, दे स्टार्ट प्रोक्रास्टिनेटिंग. Even if there are laws making public sector enterprises, they are not getting closed, they are still running, which is a huge burden on the economy. तो ये आप बोल सकते हो. ओके, ये कर लें ये भी, या फिर यू गेटिंग मिक्स्ड इकोनॉमी कंप्लीट कर लें फटाफट, क्योंकि इंटर रिलेटेड ही ऑलमोस्ट, वो दो चीजें समझ आ गई तो ये भी इजीली पता ही है तुम्हें, राइट. बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म का एग्जिस्ट करते हैं एलिमेंट्स, राइट, एंड बोथ रोल प्ले करते हैं इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट. और ये प्रमोशन दोनों तीनों की हो जाती है, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, सोशल वेलफेयर. ग्रोथ जो है वो कैपिटलिज्म से रिलेटेड है, स्टेबिलिटी तो है ही क्योंकि दोनों का एक साथ एक कॉम्बिनेशन है, और सोशल वेलफेयर थोड़ा सा सोशलिज्म. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, शेयर्ड ओनरशिप, गवर्नमेंट रेगुलेशन विद मार्केट फ्रीडम, मतलब दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं. फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज विद इन रेगुलेटेड फ्रेमवर्क, मतलब कि ये भी एक तरीके से यही पॉइंट है, बस यहाँ पे थोड़ा सा फ्रीडम ऑफ चॉइसेस को टच अपॉन कर रहा है. और मतलब फ्रीडम जैसे यहाँ मार्केट फ्रीडम दे रखी है, यहाँ पे फ्रीडम की तरफ थोड़ा सा उस एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ये रेगुलेशन की तरफ. ठीक है, बट दोनों बोल बात सेम ही रहे. बैलेंसिंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी विद सोशल इक्विटी, मतलब यहाँ दोनों ही चीजें हो रही है. एफिशिएंसी कहाँ देखी थी हमने? कैपिटलिज्म में. इक्विटी कहाँ देखी थी? है ना. तो कुछ ही वर्ड्स है, तो अगर आप लाइन बना के ड्रॉ करो कैपिटलिज्म ऐसे, सोशलिज्म ऐसे, तो यू कैन इजिली, मतलब ये एफिशिएंसी जो वर्ड है, कुछ मैं अभी लिख लो जल्दी जल्दी और थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना. एक कैपिटलिज्म लिखो एंड देन मेक अ लाइन एंड देन राइट द सोशलिज्म. कैपिटलिज्म के नीचे लिखो एफिशिएंसी, और उसी के सामने लिखो सोशल इक्विटी. ठीक है, फिर कैपिटलिज्म के उस पर लिखो मार्केट फ्रीडम, उसके सामने लिखो सोशलिज्म में गवर्नमेंट रेगुलेशन. ओके, इतना ही काफी है. एफिशिएंसी के आगे ना इकोनॉमिक. ओके, आई एम जस्ट रैपिंग अप, बस 5 मिनट. इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ठीक है. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो पेपर में एग्जाम में आंसर लिखते वक्त ध्यान रहना चाहिए. बाकी इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है. ठीक है, कंबाइंस एफिशिएंसी विद स्टेबिलिटी, जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो गवर्नमेंट ज्यादा अथॉरिटेटिव भी नहीं हो सकती, करप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रीडम भी मिल रही है साथ साथ. ठीक है, स्टेबिलिटी सेम थ्रू गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मतलब कि थोड़े से ये वाली जो चीज देखने को मिलती है ना, ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बहुत देखने को मिलती है कि डॉलर और रुपीज के प्राइसेस इतने ज्यादा भी फ्लक्चुएट नहीं होते, बट फ्लक्चुएशन के लिए अलाउ हुए है, बट विद इन अ लिमिटेड बैंड. कि अगर 89 से मान लो नीचे चला गया या 92 से ऊपर चला गया, तो गवर्नमेंट विल स्टेप इन टू कंट्रोल इट, गोल्ड को खरीद लेगी, कुछ ना कुछ करेगी. दिस इज एक मिक्स्ड इकोनॉमी काइंड ऑफ पॉलिसी. ठीक है, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करना, इनोवेशन, कंपटीशन. अगर ये खुद भी आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, इसमें कोई बहुत वो नहीं है, डिफरेंट चीज नहीं है. फ्लेक्सिबिलिटी है, सेम वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, complex and inefficient in decision making. Why? Because both are participating, so it can become chaotic many of the times. गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द मार्केट, अननेसेसरी गवर्नमेंट कभी कभार बहुत इंटरफेयर करती है एग्रीकल्चर मार्केट में, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करती है, वो एक तरीके से फार्मर्स के लिए अच्छी बात है, बट मेनी ऑफ द टाइम्स वो फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होते हैं या सप्लाई चेन जब उसमें करते हैं, मेनी ऑफ द टाइम्स एमएसपी की वजह से फार्मर्स
स्विच कर लेते हैं, दे आर नॉट फॉलोइंग कि क्या डिमांड सप्लाई हो रही है। बट एमएसपी अगर किसी राइस का बढ़ा दिया तो सारे फार्मर्स राइस ही राइस उगाने लग गए, तो फिर उससे क्या होगा, प्राइस और डाउन चले जाएंगे। इवन इफ दे आर गेटिंग एमएसपी, बट हु इज फेसिंग द ब्रांट, और फिर वेस्टफुल भी है। तो मेनी ऑफ द टाइम्स चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं। हायर टैक्सेस एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्योंकि गवर्नमेंट नाउ इज पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट, तो गवर्नमेंट खुद तो अर्न करती नहीं है, टैक्सेस से पैसे कमाती है एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर वेलफेयर के लिए। इनइक्वालिटी अभी भी हो सकती है, इंडिया में है, राइट। रिस्क ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टेप, ये जो रेड टेप है ना, आई वॉन्ट, एक है इन द नेक्स्ट क्लास, आई वॉन्ट यू टू जस्ट इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करके आना, ठीक है। मार्केट फेलियर्स में स्टिल ऑकर, डिफिकल्टी इन फाइंडिंग राइट बैलेंस। ऑलमोस्ट अगर वो 2-3 चीजें कर लें तो मिक्स इकोनॉमी में आप खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट में हम करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये थोड़ा मैंने डिटेल में करा दिया क्योंकि आपने ये नहीं किया था 11th-12th में, ठीक है। दिस आई विल अ लिटिल बिट, इसको मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कराऊंगी, दैट बिकॉज यू हैव डन दिस इन डिटेल 11th-12th। ओके, लेट्स रैप इट अप देन। बाकी डेमो एक बार इस के बारे में भी पढ़ के आना, एक तो रेड टेप के बारे में एंड डेमोन्स्ट्रेशन बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है। आई विल एक्सप्लेन द क्लास बट आई वांट यू टू सर्च अबाउट इट अ लिटिल बिट। स्नॉब इफेक्ट, दीज आर 2 न्यू थिंग्स जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। सर को बुलाना ही पड़ेगा। Recording of it. रिकॉर्डिंग ऑफ कर